Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Along with Manoj Pathak, I am Sarabjit Kaur. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं सरबजीत कौर। Benchmark domestic indices rise for third consecutive session. Sensex settles above 83,800. Nifty adds nearly 50 points. Most Asian markets end in positive zone, and Union Minister Piyush Goyal calls India-US trade deal a significant step in advancing towards Viksit Bharat, says agreement will provide new opportunities to MSMEs, skilled workers and industries. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे दिन लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 83,800 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। निफ्टी लगभग 50 अंक उछला। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी खरीदारी तेज रही और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, ये समझौता एमएसएमई क्षेत्र, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत के लिए नए अवसर लाएगा। And Manoj, let's just remind our listeners once again, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए अब आपको लिए चलें घरेलू शेयर बाजार, जहां लगातार तीसरे सत्र में आज भी प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों की ये बढ़त मामूली रही। कारोबार की शुरुआत यूं तो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे खरीदार बाजार पर हावी होने लगे। हालांकि कारोबार एक सीमित दायरे में हुआ। कारोबार के अंतिम चरण में आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों की बिकवाली से बाजार अपेक्षाकृत कम बढ़त में रहा। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,818 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 48 अंक बढ़त के साथ 25,776 पर बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, extended gains for the third consecutive session today. The markets opened lower but quickly recovered to trade in positive territory. Thereafter, the indices oscillated between gains and losses for some time, weighed down by IT stocks before edging higher in the last hour of trade. The Sensex added 79 points to close at 83,818, while the Nifty rose 48 points to settle at 25,776. नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर। सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों के शेयर आज लाभ में रहे। 5.2% से अधिक लाभ के साथ एटर्नल सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई। आज के दिवस ट्रेंट को लगभग 5% का फायदा हुआ। एनटीपीसी के शेयर 2.4% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। उधर बिकवाली पर ध्यान दें तो आईटी सेक्टर को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है और इन्फोसिस घाटा उठाने वालों में सबसे आगे रही। इसके शेयर 7.2% लुढ़क गए। टीसीएस को 6.9% से अधिक का नुकसान हुआ। एचसीएल टेक के शेयर 4.2% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। In the sectoral indices at the BSE, 19 out of 22 sectors ended in the positive zone. Among the gainers, utilities rose over 2.7%, while oil and gas and consumer durables jumped around 2.4% and power added nearly 2.2%. The major drag was IT, which slumped 5.5%, followed by focused IT, which tanked over 5%, and healthcare, which dipped over 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,726 companies advanced,
1,477 shares declined and 163 remained unchanged. Dr. Sharma, we'd like to draw your attention here today. We saw the movement in the IT sector. Now, do you think this sell-off reflects short-term panic, or is it signaling a deeper structural change in how IT services will be valued? I don't see any deeper correction in the IT stocks because this is short-lived and this is news-based volatility actually. Because end of the day, human is going to provide the final delivery. And such kind of news that AI or the advanced AI will undermine the operations or the performance of the traditional or the conventional companies is not true actually. I don't believe in such kind of connotations because end of the day, everybody will be beneficial from such kind of trajectory of AI development in the coming times because that is needed, everywhere needed. So we need to focus on that aspect that AI is going to become more and more deeper in the many economies. Like we are only at 30% of AI and world is at 26% on an average. So going forward, every company is needed. Though the traditional or advanced AI, I believe everybody will work and benefited from the development of AI everywhere in the world. आइए पहले नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 16 पैसे कमजोर हुआ, 90 रुपए 42 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 97.57 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम देखें तो बाजार का कुल मिलाकर मूड, यदि हम आईटी सेक्टर को छोड़ दें तो बढ़त में ही जाता दिख रहा। यानी बाजार की अवधारणा पूरी की पूरी आपको क्या दिख रही? जो एक बुलिश ट्रेंड है वो फिर से वापस लौटता दिख रहा बाजार? जी बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जो बाजार है अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ में है और जो हमने पीछे कुछ दिनों के जो डेवलपमेंट्स देखे हैं, खास करके जो हमने 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से लेके अभी 2 फरवरी तक मेजर डेवलपमेंट्स देखे। हमने ईयू के साथ अपना एफटीए साइन किया, उसके बाद हमारी यूएस के साथ डील जो है वो फाइनल हुई, जिसका अभी 18% का हमारे पास जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो भी आ गया है। तो कुल मिला के जो अगर हम देखें इन दोनों डील्स का या फिर इससे पहले जो इंडिया ने 7 एफटीए साइन किए आप 2020 के बाद, तो ये सभी एफटीए 9 इनको कहेंगे 7-8 एफटीए और जो एक ट्रेड डील जो यूएस के साथ हुई है, तो ये सभी मिलके लगभग कोई इंडिया का 50% ट्रेड कवर करते हैं कुल मिला के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो ये समझो कि हमारा जो 50% ट्रेड है दैट इज नाउ सेटल्ड एंड on the basis of our various negotiations and give and take with such kind of prominent economies, starting from free trade agreement with Mauritius, thereafter UAE, then we signed New Zealand, we signed UK, we signed Oman, we signed EU, now great trade deal with the US. Otherwise, other fundamentals like the macroeconomic fundamentals are very much in favor. We have a lower inflation trajectory. We have high growth in the GDP, and growth is anticipated higher than the economic survey mentioned in its recent publication, 6.8 to 7.2%. So now the growth will be higher on the basis of this great deal with US. And for the current year, 25-26, we will grow at around 7.4%. That is a great number. So growth is very much strong. Inflation conditions are benign. Our other parameters like the IIP numbers or the exports are steady. So every aspect is very, very positive for the markets. Only the challenge was US trade bill. Now only one thing is there, that is the geopolitics, which is happening between US and Iran and many other countries. So that is the only challenge now for the global economy, or particularly for us, because we are in a good position of the macroeconomic numbers and the trade deals. We have signed the 9 deals now since 2020. So going forward, I think markets have a great potential to make new highs on the basis of such kind of developments. As already seen in the behavior of yesterday's market, that markets went up significantly high on the news of trade deal with the US. Dr. Sharma, you have been, dwelling upon the US-India trade deal, though the fine details are still to be out. But on the broader canvas,
What is the expectation? Will this deal make Indian exports more competitive in the US market? Yes, definitely, because now this 18% number is very magical number. Now you compare this number with Asian economies, you compare this number with Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, many countries, the competitive or the peer group is now higher than us in the tariffs. We are at 18%, they are 19%, 20%, or even higher than 20%. So otherwise, we are already competitive on the basis of our strengths in the labor-intensive products. So going forward, this 18% will again increase our competitiveness in the global market, and we will become more resilient in the exports. And I believe this trajectory of trade with the US is going to double in the next 5-6 years from here, from 2026 to 2030 or 2031, at the rate of $500 billion. Which is now at around $200 billion. So this is, I think, a win-win situation for the Indian economy and for the US also, because they are facing headwinds. They are facing the trajectory of inflation going up, because they are killing the welfare in their particular country with the high tariffs. So now they have realized that this is not fair for their country, which is undermining the welfare, and now this deal will again provide goods at a lower rate and create welfare and also address the inflation trajectory of largest economy. डॉक्टर शर्मा, यदि हम यहाँ ये समझना चाहें कि बजट की घोषणा हो चुकी, जो कुछ आना था वो आ गया, अमेरिका के साथ व्यापार भी हमारा अब एक पड़ाव पर पहुंच गया है जहां कुछ फाइन प्रिंट्स निकल के आएंगे, तब हम विस्तृत जानकारी ले पाएंगे। ईयू के साथ क्या समझौता होगा उसकी विवरण भी आने वाले समय में आएंगे। यहां से अगले 1-2 वर्षों तक कौन सा सेक्टर सबसे टिकाऊ, मुनाफा देने वाला और संभावना वाला अब दिख रहा है हमारे छोटे निवेशकों के लिए? देखिए मनोज जी, इंडिया की इकोनॉमी एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है. Every sector is a promising and profitable sector in India because we are moving towards विकसित भारत. और विकसित भारत में कोई भी सेक्टर पीछे नहीं हटेगा, सभी सेक्टर ग्रो करेंगे. नाउ एवरी रोड गोज टू विकसित भारत. तो मैं ये कहूंगा कि ये जरूर है, उसमें से कुछ सेक्टर कुछ ज्यादा माहिरियत भी हासिल करेंगे. तो जो मैं एज एन इकोनॉमिस्ट सोचता हूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आकर्षित है, क्योंकि बिकॉज विकसित भारत के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक हाई लेवल पे, एडवांस स्टेज पे डेवलप करना होगा, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं पिछले काफी वर्षों से. अब देखिए कि नाउ सी द लेवल ऑफ रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सब जगह पे आपको एक बदलाव नजर आ रहा है. इनफैक्ट द बजट आल्सो हैज मेनी प्रॉमिसेस ऑन दैट फ्रंट. अभी फिर देखो, हमने 12.25 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है. तो ये 12.25 लाख करोड़ रुपया जो आगे खर्च होगा, इससे खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं होगा. दिस विल क्रिएट ट्रमेंडस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी. यानी बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जुड़े हुए सभी सेक्टर में एक अच्छी खासी बढ़त हम देखेंगे. और दूसरे पे अगर हम फिर इसके साथ दूसरा लॉजिक देखें कि बुनियादी ढांचा तो डेवलप होगा, ये 12.25 लाख करोड़ रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैसे ये आगे इसका चलन कैसे रहेगा, तो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रैजेक्टरी हम देख रहे हैं, आने वाले टाइम में भी रहेगी. इसके अलावा एवरी सेक्टर इज प्रॉमिसिंग सेक्टर. बहुत देखो, इस टाइम पे आप कोई भी सेक्टर में आप देखेंगे निवेश हर एक सेक्टर में हो रहा है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो, या फिर आपका केमिकल प्रोडक्ट्स हो, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो, या फिर आपका टेक्सटाइल्स हो, लेदर हो. सरकार ने उसके लिए कितनी घोषणाएं की हैं अभी जी. जो लेदर सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, मरीन सेक्टर के लिए कितनी ज्यादा घोषणाएं बजट में हो चुकी हैं. सो ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां कुल मिलाकर तेजी दिखी है. निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.6% लाभ में रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.4% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए हैं. हांगकांग का हेंग सेंग मामूली लाभ में रहा. उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.8% घाटे में रहा. सबसे नुकसान टेक सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को हुआ, जिसके चलते जापान में बिकवाली अधिक बढ़ गई.
यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी प्रमुख बाजार लाभ के साथ चल रहे थे। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.4% और फ्रांस का CAC 40 1.2% ऊपर चल रहे थे। उधर जर्मनी का डेक्स भी 0.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। And Manoj, let's see now how the US markets have fared. Major US indices closed down yesterday, dragged by IT and software stocks, as investors grew concerned that advances in AI could intensify competition for software makers and reshape the traditional outsourcing model. The Nasdaq Composite Index fell over 1.4%, the S&P 500 slipped over 0.8%, and Dow Jones Industrial Average dipped over 0.3%. आइए लौटे स्वदेश। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक आज से शुरू हो गई। 3 दिनों तक चलने वाली बैठक की समीक्षा नतीजे की घोषणा शुक्रवार को होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़े विविध पहलुओं पर चर्चा के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि फरवरी 2025 के बाद से अब तक केंद्रीय बैंक रेपो दर में 125 आधार अंकों की कटौती कर चुका है। फिलहाल ये दर 5.25% है। And Dr. Sharma, what's your view? With inflation and growth both in focus, do you expect the MPC to hold the repo rate steady or make any changes this time? Yes, very good question, because now inflation trajectory is very benign and less than 2% since the last many months, and growth is very high. I would say we are strong in growth trajectory throughout the world, whether the advanced economies or the emerging economies. So at this juncture, I believe 25 basis point cut is expected from RBI, because inflation is very much under control, less than 2%, and we have to support the growth now. Though we are growing significantly more than 7%, but the trajectory should be supported by the more positives, considering the global headwinds, like many developments in the geopolitics, and we have faced the high tariffs also. So some respite from the repo rate at the rate of 5%, with a 25 basis point cut will be inevitable for the growth of the economy, and to create a positive sentiment among the businesses to move forward and to become more robust in the trajectory of competitiveness at the domestic and global level. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते में उर्वरक और कृषि जैसे अपने संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा ध्यान रखा है। राज्यसभा में बयान देते हुए श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता छोटे और मझौले कारोबारियों, MSME के साथ उद्योगपतियों, कुशल कामगारों और उद्योगों को नए अवसर प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि इसे पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जा सके और प्रक्रियाओं के समापन के बाद तुरंत समझौते के विवरण की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले आज लोकसभा में पीयूष गोयल ने एक बयान देते हुए कहा कि ऐतिहासिक भारत और अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र है, हमारे लिए जो मसला बेहद अहम है, वहां पर कोई समझौता यानी अपनी ओर से उसमें नरमी नहीं बरती जाएगी। क्या उम्मीद है आपको कुल मिलाकर दोनों देशों को यह किस रूप में नए अवसर देने वाला है? देखिए मनोज जी, अगर हमने समझौता करना होता तो शायद अप्रैल मई में ही हो जाता, जब भी उन्होंने हाई टैरिफ की घोषणा की थी। तो एक फेवरेबल डील के लिए ही हम अटके हुए हैं। हमारी सरकार ने
प्रयासों के द्वारा ही ये सब कुछ किया है कि 18% पे आए। अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना होता तो पहले ही हो सकता था, तो हम इतना इम्पैक्ट क्यों होने देते। बिल्कुल। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो डील है वो हमारे फेवर में होगी और सरकार इसके ऊपर बड़े गौर से जो है आगे डील को फाइनल कर रही है। Moving on to the next big story of the day, External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio in Washington ahead of the critical minerals ministerial meeting scheduled for today. In a social media post, Dr. Jaishankar said facets of India-US strategic partnership discussed included trade, energy, nuclear, defense, critical minerals and technology. Secretary Rubio and Minister Jaishankar welcomed the trade deal reached between President Trump and Prime Minister Modi. The two leaders emphasized the importance of their democracies working together to unlock new economic opportunities and advance their shared energy security goals. They also expressed their commitment to expanding bilateral and multilateral cooperation through the Quad. Earlier, Dr. Jaishankar also met U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, with the two sides discussing ways to advance the India-US economic partnership and strengthen strategic cooperation. भारत ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र BCIC में शामिल हो गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि NPC BCIC के साथ देश की सहभागिता का नेतृत्व करेगा और क्षमता निर्माण, उत्पादकता वृद्धि और उन्नत विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने में योगदान देगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ साझेदारी में शुरू किए गए BCIC का उद्देश्य ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं को और उससे पड़े औद्योगिक नवाचार, आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। कुल मिलाकर क्या कह रही है ये खबर और किस रूप में ब्रिक्स देश आपस में अपनी जो उपलब्धियां हैं या अपने पास जो अवसर हैं उसको एक नया आयाम देने जा रहे हैं? देखिए, ब्रिक्स जो है मनोज जी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसमें खास करके जो वर्ल्ड की मेजर इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सभी उसमें सम्मिलित हैं, चाइना है। तो इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस का जो दौर है उसको और सुदृढ़ करने के लिए और अपना जो व्यापार है उसको और तेज करने के लिए ये संभावनाएं आगे जताई जा रही हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीज आर वेरी ग्रेट डेवलपमेंट्स टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्लोबल अलायंसेस। आइए आगे बढ़ें। Global crude oil prices rose today after the U.S. shot down an Iranian drone and armed Iranian boats approached U.S.-flagged vessel, rekindling fears of an escalation between Washington and Tehran. Brent crude was trading over 0.3% up at $67 and 55 cents per barrel, and WTI crude was also trading 0.5% up at $63 51 cents per barrel when reports last came in. आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार, उसके बाद तेल और सोना चांदी दोनों पर हम मिलके बातचीत करेंगे। In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 3.4% up at 1,59,080 rupees per 10 grams. Silver was trading 6.3% up at 2,84,950 rupees per kilogram a short while ago. आइए आपको लिए चले MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 3.2% बढ़त के साथ 1,58,726 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 5.8% बढ़त के साथ 2,83,520 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। यहाँ पर प्रतिक्रिया आपकी समझना चाहेंगे। पहले तेल के दामों पर, तेल जो ताजा अमेरिका ईरान के बीच में जो झड़प कह लें या कह लें जो स्थिति जा रही है, उसमें तेल के दाम किस हद तक प्रभावित होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मनोज जी, तेल में शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी तो कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियम टर्म में प्राइसेस जो ऐसे स्टेबल ही रहेंगे। हमने देखा कि पिछले 2 दशकों से
जो प्राइसेस है वो बहुत स्टेबल है और कोई ऐसी संभावना नहीं है कि एकदम से एस्केलेशन आएगी। तो हाँ, शॉर्टर टर्म में ऊपर नीचे हो सकते हैं, $2-4-5 का जो है वॉलेटिलिटी इसमें देखा जा सकता है। लौटते हैं सोने पर। सोने में हमने अमेरिका में जो केंद्रीय बैंक है उनके नए नामांकन की घोषणा के बाद से थोड़ा हिचकोले खाने लगा सोना और फिर अब ऊपर की ओर जाता आज दिखा है। तो कुल मिलाकर क्या लग रहा सोना? देखिए, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, ग्लोबल प्रॉफिट बुकिंग हुई। जो अमेरिका के नए फेड चेयर का अपॉइंटमेंट है उसका कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि सोने को वो कोई शेप दे सकते हैं। अच्छा। गोल्ड इज ए ग्लोबल कमोडिटी, नोबडी कैन शेप द गोल्ड प्राइसेस। बिल्कुल। तो हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि अगर ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता कि गोल्ड को वो शेप दे सकता है तो शायद गोल्ड कहीं और ही होता। यानी तो उस समय जो हम बाजार में चर्चा देख रहे थे कि फलाने जी के चलते का शायद मेरे को एक रीजन लग रहा है, बहाना था एक कि ग्लोबल लेवल पे जाके जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में जो लोग होते हैं उन्होंने सेल किया, ग्लोबल सेलिंग आई तो उसके बाद प्रॉफिट। आपने देखा कि अभी तो वही बन रहे हैं चेयर, तो वापस गोल्ड में एक स्ट्रांग रिकवरी भी देखी गई। So does that put at rest the big question that will this recovery sustain? Yes, I would say this will sustain and gold will consolidate at sometime at these levels, like 1,50,000 and 1,60,000. This will be the consolidation level. Thereafter, gold may have its original trajectory of higher prices. यहाँ पर आखिरी सवाल कि सोने में निवेश करना हो तो स्वर्ण धातु में करें या ETF के माध्यम से जाएं? बहुत देखिए, बेस्ट है ETF और एकदम से निवेश मत करो, कोई भी ग्रेजुअल निवेश होना चाहिए। जैसे कि सेलिंग भी कई लोगों ने शायद एकदम से किया या वन गो में करने से क्या होता है कि आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट करो और ग्रेजुअली जब अपना मुनाफा वसूली करो। यानी हमारे विशेषज्ञ की सलाह है कि आप सोने में निवेश अवश्य करें, ETF के माध्यम से करें और आप धीरे धीरे निवेश करें। बेचना भी हो तो धीरे धीरे निवेश करें। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी, Prime Minister Narendra Modi will pay an official visit to Malaysia beginning Saturday at the invitation of Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim. This would be the third visit of Prime Minister Modi to Malaysia and the first after elevation of India-Malaysia bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership in August 2024. External Affairs Ministry said that during the visit, Prime Minister will hold bilateral discussions with his Malaysian counterpart. Prime Minister Modi will also interact with members of the Indian community as well as industry and business representatives. The 10th India-Malaysia CEO Forum is also scheduled to be held coinciding with the visit of the Prime Minister. India has secured continued access to the European Union market for exports of animal origin products despite the EU's enhanced regulatory requirements. The Ministry of Commerce and Industry said that the European Union has amended its regulations to tighten controls aimed at curbing antimicrobial resistance. The revised rules will come into effect from September 2026. Through proactive measures taken by the government, India has been included in the EU's list of nations authorized for the entry of aquaculture products, eggs, honey and animal casings beyond September this year, with conditional provisions applicable for milk and poultry products. The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association has warned that the country's ready-made garment sector is facing growing instability, with many factories at risk of closure. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Yes, listeners, and before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise for third consecutive session. Sensex settles above 83,800. Nifty adds nearly 50 points. Most Asian markets end in positive zone. And Union Minister Piyush Goyal calls India-US trade deal a significant step in advancing towards Viksit Bharat, says agreement will provide new opportunities to MSMEs, skilled workers and industries. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।